Hello everyone, good morning to all. Now today we are going to start the new chapter of class 10 physics, that is the human eye and colorful world. When we are talking about this particular chapter, definitely this chapter is related to light, reflection and refraction. We can say this is the second half of the same chapter, light, reflection and refraction. But because of COVID-19 pandemic, 30% of our class 10 syllabus is reduced, and this particular reduction in the syllabus affect on this particular chapter. This particular chapter is all about two parts, that is the study of human eye and its defect, okay, and also the colorful world. But because of COVID-19 we have reduced the syllabus, so they deleted the portion that is study of human eye and its defects, okay. So this year only we are going to learn is colorful world. So this particular colorful world having three different phenomena. Number one, dispersion of light and its application, okay. Number two, atmospheric refraction, and number three, scattering of light. So in this particular video we are going to focus a light on these three different phenomena, okay. So let's start with the first phenomena, that is dispersion of white light into 7 colors, okay. So before we start with the dispersion of light, first we are going to learn that how the light refract when it passes through the glass prism. So our first topic is refraction of light through glass prism. Now talking about glass prism, in class 10th we are having this particular practical, that how the light is refract through the glass prism. So here we are having with us the rectangular base glass prism. So these are the faces of glass prism. So when the light is passes through this particular glass prism, how it refracts, that particular practical. In this you have to draw the diagram of refraction of light through the glass prism. We can say the ray diagram, okay. So first we learn about this, then this particular topic gives us idea about dispersion of light through this glass prism, okay. So moving towards, so in this particular practical you will get the glass prism, a white paper, okay, and the drawing board also. उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप उस ग्लास प्रिज्म के ट्रायंगुलर बेस को सेट करोगे इन दिस पर्टिकुलर वे. मान लो कि दिस इज व्हाइट पेपर एंड दिस इज माय ग्लास प्रिज्म. सो यू हैव टू प्लेस द ग्लास प्रिज्म इन सच ए वे दैट एंड यू हैव टू मेक द मार्क ऑफ इट. आउटलाइन ड्रॉ करोगे आप, ओके. सो दैट पिक्चर इज लुक्स लाइक this. So this is your triangular base glass prism having three different vertices A, B and C, okay. Then so you have to fix this particular glass prism on the white paper and just you have to draw the outline for the faces and you will get this kind of diagram, triangle A, B, C, okay. अब ये करने के बाद उस ग्लास प्रिज्म को वहां से आप निकाल लो. देन यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल टू द फेस AB, ओके. सो दिस इज द नॉर्मल टू द फेस AB. सो कैसे करेंगे, प्रोट्रैक्टर यहाँ पे लगाएंगे. यू हैव टू सिलेक्ट एनी पॉइंट ऑफ इट. इस पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर लगाओगे और 90 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन ड्रॉ करोगे. सो दिस लाइन इज नॉर्मल टू द AB. अब इस लाइन के साथ एंगल बनाने वाला एक ऐसा इंसिडेंट रे यू हैव टू ड्रॉ. सो दिस इज योर इंसिडेंट रे. आर यू गेटिंग मी? दिस इज योर इंसिडेंट रे. नाउ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट रे strikes on this normal and making this particular angle.
So this is incident ray and this one is normal. So this particular angle is called as angle of incidence. Okay. Then suppose this angle of incidence is 30 degree. Suppose it is 30 degree. Then we are going to enter from air medium to glass medium. So air medium is rarer and glass medium is denser. So light bends towards the normal. As per our rule, when the light enters from a rarer medium to denser medium, its speed goes on decreasing, and as the speed decreases, it bends towards the normal. So definitely it bends towards the normal. See, जो लाइट सीधे जाने वाला था, it bend towards the normal. Okay, so when it bends, this bending of light is called as refraction. So this particular angle is angle of refraction. This is angle of incidence. When it bends, this is angle of refraction. Now it strikes on this particular point. So on this point also you have to draw one normal. So this is another normal on interface AC. So now this particular refracted light comes out of this glass medium. Now it moves from glass to air. So when it moves from glass to air, again it enters from denser medium to rarer medium. Velocity or speed of light goes on increasing. As the speed of light increases, it moves away from the normal. See, so this is called as angle of emergence. This is called as angle of emergence. So this ray is incident ray, this one is refracted ray, and the ray which is coming out of prism is called as emergent ray. So incident ray, refracted ray and emergent ray. Okay, then you have to find out angle of deviation. What is the meaning of angle of deviation? जब लाइट एयर मीडियम से ग्लास प्रिज्म में जाता है, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाता है, तब वो बेंड हो जाता है और बाद में बाहर आता है एज ए इमर्जेंट रे. सो वो बेंडिंग का मतलब हुआ लाइट का डेविएट होना. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे. ओके, ये यहां तक मैंने एक्सटेंड किया और हमने इंसिडेंट रे को भी सीधा स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा खींचा. तो यहां पे मुझे एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है. इस एंगल का मतलब क्या हुआ, अगर ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा जाता. अगर ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा जाता, बट ग्लास के कारण उसे पहले रिफ्रैक्ट होना पड़ा, बाद में इमर्ज होना पड़ा. पहले इंसिडेंट, देन रिफ्रैक्ट, देन और एक बार रिफ्रैक्ट. ओके, तो ग्लास ने दो इंटरफेसेस के ऊपर इस लाइट को बेंड किया. इस बेंडिंग के कारण हमें पता चला कि जो इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही थी वो डेविएट होके ऐसे चलेगी. तो यहां पे हमारा बनता है एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. सी, ये सीधा जा रहा था बट इसे क्या होना पड़ा, डेविएट. क्या होना पड़ा, डेविएट. जैसे हमने स्फेरिकल लेंसेस में सीखा कि दो बार रिफ्रैक्शन होता था लेकिन हम एक लाइन में उसे मर्ज कर देते थे. सिमिलरली यहाँ पे भी दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है. यहाँ पे आने के बाद पहले एक बार बेंड हुआ, फिर वहां से बाहर निकलते बाद दूसरी बार बेंड हुआ. हमने उसे एक बार कंसीडर किया. अगर मैं इसे थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और मैं इमर्जेंट रे को अटैच कर देता हूँ तो यहाँ पे मिल जाता है मुझे एंगल ऑफ डेविएशन. सो ये प्रैक्टिकल करने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्लास प्रिज्म इंसिडेंट रे को क्या कर देती है, डेविएट कर देती है. क्या कर देती है, डेविएट. और ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करेक्ट आपने परफॉर्म किया है या नहीं किया, ये चेक करने के लिए आपको इस एंगल को गिनना पड़ेगा. दिस एंगल ए इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, and as it is equilateral, angle of prism is equivalent to 60 degree. It is equivalent to 60 degree. So आपको यहाँ पे एक चेक करना है, measure of angle of incidence plus measure of angle of emergence, it must be equals to measure of angle of prism
plus measure of angle of deviation, we can call it as d. I plus E must be equals to A plus D. अगर ये आपका सही आ जाता है, that means your practical is exactly performed. Okay. For example, it is 30 degree and you have to calculate E. You have to calculate E. तो मान लो मैंने E को calculate किया, ये निकल गया मान लो 65 डिग्री. कितना निकल गया? 65 डिग्री. So I is equals to 30 degree and E is equals to 65 degree. So what is your total? 95 degree. Then angle A equals to, it is 60 degree. So your D, this D must be 35 degree. If it is 35 degree, you will get your answer. Measure of angle of incidence plus measure of angle of emergence is exactly equals to measure of angle of prism equal plus measure of angle of deviation. I plus P, I plus E is equals to A plus D. So this is the experiment that gives us idea about refraction of light through glass prisms and how to perform this particular activity exactly similar to that of glass slab. यहाँ पे आपको दो पिन सेट करने पड़ेंगे P1 and P2. फिर ग्लास प्रिज्म रखना पड़ेगा. ग्लास प्रिज्म रखने के बाद दूसरे फेस से आप उन पिन्स को देखने की कोशिश करोगे और इस P1 और P2 को अलाइन करने वाले दो पिन P3 और P4 आप यहाँ पे सेट करोगे और आपको ये इमर्जेंट में मिल जाएगा. I will post another video of this particular practicals also. In this particular class, you have to perform these practicals also. Okay. So this is all about refraction of light through glass prism, and this refraction of light glass prism gives us idea about the dispersion of light through glass prism. Okay. तो यहाँ पे सीखना क्या था, जब भी इंसिडेंट रे एयर मीडियम से ग्लास में चला जाता है, ग्लास प्रिज्म में, सो वो क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है और उस एंगल ऑफ डेविएशन को आपको कैलकुलेट करना है. आर यू गेटिंग मी? ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म. Now the first term, what is meant by dispersion of light? Okay. So बचपन की कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ. डिस्पर्शन ऑफ लाइट. हम बचपन में क्या करते थे, हमने तो किया है, सीडी जो पता है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क आती है, उसे एक कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स करके वैसा एक सर्कल काट लेते थे. उस सर्कल के इक्वल 7 पार्ट बना देते थे और इन 7 पार्ट्स के ऊपर 7 विबग्योर जो कलर है अपने, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों कलर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पार्ट वहाँ पे कलर कर देते थे. फिर वहाँ पे बीच में होल करते थे, वहाँ पे स्टिक के साथ जोड़ देते थे और उसे जोर से घुमाते थे. जैसे ही वो व्हील घूमता था, सारे 7 कलर अपीयर होते थे, अ सिंगल वाइट कलर, और जैसे जैसे स्पीड कम हो जाती थी हमें वो सेपरेट कलर दिखाई देते थे. यस और नो? रेनबो भी आपको उसी तरीके से मिलता है कि जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में से पास होती है, सो इट स्प्लिट्स इनटू दैट 7 कलर्स. यस, एंड दिस इज नथिंग बट आवर न्यू फिनोमेना डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है. सिंपल सा लॉजिक है, डिस्पर्शन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स. हम जो व्हाइट कलर बोलते हैं, जो सन से लाइट आती है, सनलाइट, दिस सनलाइट इज कंसिडर्ड एज व्हाइट लाइट. देन और ये व्हाइट लाइट जो है, ये बोली गई है कि 7 डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन है. तो ऐसा क्यों है, ये टॉपिक पढ़ने का मतलब है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, वी फाउंड दैट again a glass prism, and we allow this time
sunlight to strike on interface AB. So this particular sunlight when strikes on the interface of glass prism, that is AB, so this particular interface allow that light to deviate through glass prism. वो उन्हें डेविएट कर देता है, बेंड कर देता है. बट द थिंग हैपन कि जब ये व्हाइट लाइट एयर मीडियम में ट्रैवल करता है, मान लेते हैं कि ये सनलाइट जब एयर मीडियम में ट्रैवल करता है, सो इट अपीयर्स एज अ व्हाइट लाइट. कौन से मीडियम में? एयर मीडियम में. बट व्हेन इट एंटर्स इनटू ग्लास प्रिज्म, वी फाउंड दैट इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. कैसे? तो मुझे पता चलता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कलर में टूट जाता है. और ये 7 कलर कौन से हैं? V I B G Y O R. Violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज, रेड. तो इस पॉइंट पे ऐसा क्या हुआ कि ये जाने वाला व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गया. दिस व्हाइट लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस व्हेन इट एंटर्स इनटू एयर टू ग्लास, व्हाई इट splits into 7 different colors? This is the question. On this interface, when white light splitting into 7 different colors, such splitting of white light into 7 different colors is called as dispersion of white light. तो डेफिनेशन तो समझ गए कि व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाना, यही होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट. और जब मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन रखता हूँ, तो इस स्क्रीन के ऊपर ये रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. So you will get band of 7 different colors, and this band of 7 different colors is called as spectrum, and you will get this spectrum on screen. Now the question arises, why this white light splits into 7 different colors when it enters into glass? So for this particular phenomena हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, which is not a part of our syllabus this year, but it is very important to understand. तो अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ बड़े अच्छे से ध्यान देके सीखना है आपको, ठीक है. क्वेश्चन बनता है कि 7 कलर्स में क्यों टूटा? 7 ही कलर्स होते हैं क्या, या और भी कुछ ज़्यादा कलर्स है? ठीक है. रेड ही क्यों ऊपर है, वॉयलेट ही क्यों नीचे आया, यही सीक्वेंस क्यों है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे मिलने वाले हैं, ठीक है. अब ये प्रैक्टिकल किसने किया? दिस प्रैक्टिकल इज आल्सो डन बाय न्यूटन. Dispersion of light first time observed by Newton, and he found that when white light enters into glass prism, it splits into 7 different colors. But he conjectured that if white light when enters into first glass prism, it splits into 7 colors. But when the 7 color again goes into different prism, maybe they splits into again 7, means the total colors becomes 49. तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन रखने के जगह, यहाँ पे स्क्रीन रखने के जगह उन्होंने क्या किया, और एक प्रिज्म रख दिया. सो फर्स्ट प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट किया. फिर जब ये 7 कलर दूसरे प्रिज्म में गए, तो फिर न्यूटन को लगा कि 1 splits into 7, so maybe 7 splits into again different 7, so 7 7 49 colors you will get. But the answer is different. सिर्फ वो लाइट थोड़ा और बेंड हुआ,
और उन्हें सिर्फ वही कलर्स मिले, वही 7 कलर्स, और ज्यादा कलर्स नहीं मिले। मतलब फर्स्ट व्हाइट लाइट splits into 7 different colors. When that 7 different color again enters into another glass prism, as there is a glass medium, they just bend again. They just bend again, and you will get the spectrum on bottom side. But 7 के 7 ही कलर रहे, उनका और स्प्लिट अप नहीं हुआ। ये ना होने के बाद उन्होंने क्या करके देखा? दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और थोड़ा इसे अच्छे से समझना है। इसके आगे का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, वो एक्सपेरिमेंट था रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाट? रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म सीधा प्लेस किया और इसी के साथ दूसरा प्रिज्म उल्टा प्लेस किया। सो दिस इज ए बी C. So this is another prism, A dash, B dash, C dash. So एक सीधा और दूसरा उल्टा। इस तरीके का सेटअप करके उन्होंने लाइट को रिकम्बाइन किया। बट लाइट रिकम्बाइन कैसे होता है, कलर स्प्लिट अप कैसे होते हैं, इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे की जो प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि लाइट प्रिज्म में जाने के बाद स्प्लिट क्यों होती है। So to explain the phenomena dispersion of light, हम ग्लास को वेव कंसिडर करेंगे। लाइट हैविंग अ ड्यूअल नेचर। द मीनिंग ऑफ ड्यूअल नेचर, लाइट समटाइम appears as a wave, where sometime it appears as a in the form of particle nature. Okay, this particular dual nature of light is there in class 12th. चैप्टर का नाम होगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये लाइट का ड्यूअलिटी नेचर है, कभी वो पार्टिकल कैसे कंसीडर किया जाता है और कभी वो वेव करके कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें क्लास 12th में डिटेल में सीखना है। तो इन पर्टिकुलर फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हुए डिस्पर्शन ऑफ लाइट को, यू हैव टू कंसीडर दिस लाइट एज अ वेव। एंड अबाउट वेव कुछ चीजें आपको क्लास 9th में थी, व्हेन वी लर्न अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, where we have learned something like wavelength, frequency, speed of a wave। वो सारी चीजें अब आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे अब अच्छे से ध्यान दो सारे, when we consider this light as a wave, so this wave is just like this. This is called as compression, this one is called as rarefaction, again the compression, rarefaction, compression। So the distance between two consecutive compressions or the distance between two consecutive rarefactions are called as wavelength। शायद आपको याद आ रहा होगा। So this is the wavelength, okay? And what is meant by one oscillation completed? When that particular wave travels, it completes some oscillation, and the meaning of oscillation, density changes from maximum to minimum and again from minimum to maximum, means compression to rarefaction and rarefaction to compression, then we can say that one oscillation get completed। मतलब आप सिंपली ये बोल सकते हो कि एक बार अगर वेवलेंथ ट्रैवल हो गई तो एक ऑसिलेशन हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन, कॉम्प्रेशन मतलब वन ऑसिलेशन, और कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन तक जाना मतलब वेवलेंथ ट्रैवल होना। तो एक बार अगर आपने वेवलेंथ ट्रैवल की मतलब एक ऑसिलेशन हो गया, यस और नो? इफ इट इज फॉर 1 सेकंड, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव फॉर 1 सेकंड। सो कितने ऑसिलेशन हुए कैलकुलेट करो, compression to rarefaction, rarefaction to compression, okay? Again compression to rarefaction, rarefaction to compression। तो कितने ऑसिलेशन हुए? Two oscillations in 1 second। That means frequency of this particular wave is 2
हर्ट्ज. होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग. एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन हुए, मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज. आपको याद आ रहा है ये सारी चीजें? ओके, क्योंकि अब इन सारी चीजों का काम है. सो वेवलेंथ आपके समझ में आ गया, ऑसिलेशन आपके समझ में आ गया और फ्रीक्वेंसी आपके समझ में आ गया. व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest is called as wavelength. What is oscillation? Compression to rarefaction, rarefaction to again compression, that is called as one oscillation takes place. And number of oscillations in 1 second is called as frequency, having a unit hertz. Say yes on then. How to calculate the speed? Speed of this particular light wave. अब मान लो कि वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर. कितना है वेवलेंथ इस पर्टिकुलर वेव का? 5 मीटर. तो एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन हुए, तो हमें कैलकुलेट करना है स्पीड. स्पीड इज नथिंग बट v. स्पीड इज इक्वल्स टू distance by time, and in the case of wave that distance is given by the wavelength. So distance means wavelength by speed is equals to distance by time, and distance is given by wavelength by time. Okay, now when we are talking about time, so frequency having a relationship between the time. It is just like frequency is denoted by this sign nu. Nu is equals to 1 by t. Nu is equals to 1 by t, or we can say t is equals to 1 by nu. कैलकुलेट करके देखते हैं सही है या नहीं. फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढना है, तो हमारे पास टाइम पीरियड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? टाइम पीरियड होना चाहिए. अगर आपको टाइम पीरियड ढूंढना है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. जैसे 1 बाय कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको? 2 हर्ट्ज. एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन हुए तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज. सो 1 by 2 इज इक्वल्स टू 0.5 सेकंड. सो डेफिनेटली एक सेकंड में 2, मतलब ये हुआ होगा 0.5 सेकंड में, और ये भी हुआ होगा 0.5 सेकंड में. मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए? 2. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो. या तो इसके उल्टा, अगर आपको टाइम पीरियड पता हो 1 by 0.5, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो. सो nu is equals to 1 by t, or t is equals to 1 by nu. So here you can put wavelength as it is, and what is meant by time? 1 by frequency. Okay, so अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलता है? लैम्डा एज इट इज एंड 1 by nu, so nu मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. So here you will get the formula. Speed is equals to wavelength into frequency. Speed of a wave is equals to wavelength into frequency. वैल्यूज पुट करो. व्हाट इज द वेवलेंथ? 5 मीटर. कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2 हर्ट्ज. सो व्हाट इज योर आंसर? 10 मीटर पर सेकंड. तो देखो एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन, 5 मीटर 5 मीटर, टोटल कितना मीटर हो गया? 10 मीटर. 10 मीटर इन 1 सेकंड. 10 मीटर इन 1 सेकंड. सो यू विल गेट द फॉर्मूला. स्पीड ऑफ अ वेव is equals to wavelength multiplied by its frequency. Say yes on. Okay, now अब ये सारी चीजें मैंने 9th के आपको याद दिला. इनका लाइट के साथ क्या कनेक्शन है, अच्छे से ध्यान. So when we consider this light as a wave, there are 7 different lights. Out of that, okay, the lights are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. These are the 7 different colors. Okay.
when these 7 different colors travels through air medium, when these 7 different colors travels through air medium, all these 7 colors travels through same speed, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. All these 7 colors travels through air medium with the same speed, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And when they travels with the same speed, they becomes combined with each other, and the combination of 7 colors appears as a white light in which medium? Air medium. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. 7 कलर्स है, ठीक है, और वो सातों कलर एक ही स्पीड के साथ एयर मीडियम से ट्रैवल करते हैं, और ये सातों कलर जब एक साथ हमें दिखाई देते हैं, सो दे लुक्स लाइक a combination of all 7 colors and they becomes white. Okay, then why they travels with the same speed in air medium? It is because of, now concentrate carefully. So when we are talking about red color, this red color having this kind of wave, okay, this kind of, this is the wave structure for red color. And when we are talking about the bottom colors like blue, actually we divide this particular 7 colors into 3 different shades. This shade is considered as blue, indigo and violet. This one is the single shade green, and this shade is considered as red. So blue shade, green shade and red shade, means out of these 3, our eyes having sensation towards red more, then green, and then out of these 3 blue. That's why you will get that particular rainbow in 3 shades. पूरे 7 कलर बहुत कम बार दिखाई देते हैं बड़े अच्छे से, बट उसमें 3 शेड्स आपको दिखाई देती है. ओके, बॉटम शेड होती है ब्लू, देन ग्रीन एंड देन रेड. ओके, अब इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे कि रेड, ग्रीन और ब्लू में क्या कंपैरिजन होता है. So this particular red looks like this, having longer wavelength, okay, long wavelength and having less frequency. कितनी फ्रीक्वेंसी, अगर ये 1 सेकंड के लिए है मानता हूं, तो कितने बार वेवलेंथ ट्रैवल हुई? बस 2 बार वेवलेंथ. तो रेड कलर का नेचर ऐसा होता है कि ये रेड कलर की वेव की वेवलेंथ लॉन्ग होती है और ऑसिलेशंस काफी कम होते हैं. तो मान लो कि ये डिस्टेंस है कितना, 10 मीटर का. फॉर एग्जांपल मैं नंबर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं. तो 10 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए उन्होंने 2 ऑसिलेशंस में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. ठीक है, तो वेवलेंथ काफी बड़ी है इसकी और ऑसिलेशंस काफी कम है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन, सो डिस्टेंस फिर से उतना ही ले रहा हूं मैं, 10 मीटर. बट ये कैसे ट्रैवल करेगा? इस बार कितने ऑसिलेशंस हुए? आप अगर देखोगे तो वेवलेंथ थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन ऑसिलेशन बढ़ गए हैं. क्या बढ़ गए हैं? ऑसिलेशन. ठीक है, इस ऑसिलेशन को मैं ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो.
ओके, सो वेवलेंथ काफी छोटी हो गई और ऑसिलेशन कितने हो गए, एक बार वेवलेंथ ट्रैवल, दूसरी बार ट्रैवल, तीसरी बार ट्रैवल और चौथी बार ट्रैवल। सो यहाँ पे वेवलेंथ थी 5 मीटर और ऑसिलेशन हुए थे 2 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। यहाँ पे वेवलेंथ काफी छोटी हो गई, मान लो कि 2.5 और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4 हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4 हर्ट्ज। नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लू कलर, now this is your blue color light. Okay, now the distance is again same meter, that is 10 मीटर। इस 10 मीटर के डिस्टेंस को कैसे ट्रैवल किया ब्लू ने विद इन 1 सेकंड। दिस इज वेवलेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो नाउ द वेवलेंथ इज 1 meter, but the frequency is 10 hertz. Now the frequency is 10 hertz. अब इन तीनों नेचर को आप अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या चीज आपको कॉमन मिलती है। हम तीनों की स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड फॉर रेड इन विच मीडियम एयर। स्पीड फॉर रेड यू आर हैविंग अ कॉमन फॉर्मूला, कौन सा, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेड के लिए। व्हाट इज द वेवलेंथ 5 मीटर एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, सो द स्पीड इज 10 मीटर। नाउ वी कैलकुलेट फॉर ग्रीन, व्हाट इज द वेवलेंथ 2.5 मीटर एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, अगेन योर आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू, wavelength is 1 meter, but the frequency is 10 hertz. What is your answer? 10 meters. This is what exactly happened in air medium. Okay, the red color having a maximum wavelength but very less frequency. मतलब अगर उसे 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसे सिर्फ 2 ऑसिलेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ काफी बड़ी है, उसकी वेवलेंथ काफी बड़ी है और फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है। टॉकिंग अबाउट ग्रीन, ग्रीन की थोड़ी वेवलेंथ कम हो जाती है बट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। टॉकिंग अबाउट ब्लू, वेवलेंथ काफी कम हो जाती है बट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सो एवरी टाइम रेड, ग्रीन एज वेल एज ब्लू, रेड, ग्रीन एज वेल एज ब्लू travels the distance 10 meter in 1 second. Travel the distance of 10 meter in 1 second only, but the difference is the propagation of their wave. रेड का propagation होता है लॉन्ग वेवलेंथ और लेस फ्रीक्वेंसी के साथ, बट ब्लू की अगर बात करो आप तो ब्लू का होता है विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ काफी छोटी होती है बट फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 7 डिफरेंट कलर्स। एयर में ये सारे लोग एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं और ये स्पीड मेंटेन कैसी होती है, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ऑलवेज यू विल गेट द सेम मल्टीप्लिकेशन। मैंने ये सिंपल नंबर लिया है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, बट एक्चुअल स्पीड एयर में क्या है आप लोगों को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब इस नंबर के लिए कैलकुलेट करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर आएंगे, इसलिए मैंने सिंपल नंबर कंसीडर किया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हर बार जब हम कैलकुलेट करते हैं रेड शेड को, ग्रीन शेड को और ब्लू शेड को एयर में, तो वेवलेंथ होती है ज्यादा रेड शेड की, फ्रीक्वेंसी होती है कम। ग्रीन में वेवलेंथ थोड़ी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, और ब्लू की बात करेंगे तो वेवलेंथ काफी कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाती है।
इस चक्कर में मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम आता है. एग्जैक्ट नंबर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second and all the colors, all 7 colors with the different wavelength and different frequency but having the same speed in air medium. Same speed in air medium, and that's why they travels with the same speed in air medium and combinedly appears as a white light. But what exactly happened when they enters into another medium? एयर मीडियम को छोड़ के कोई और मीडियम अगर रहा, जैसे वेदर ग्लास जो हमें सीखना है, ग्लास प्रिज्म, या तो वाटर मीडियम जो हमें रेनबो फॉर्म करके देता है, तो ऐसे मीडियम में एंटर करने के कारण वो स्प्लिट क्यों हो जाते हैं, अब वो सवाल है. ओके, नाउ अब हमें सीखना है कि प्रिज्म जो कि ग्लास मीडियम होगा या वाटर, ऐसे मीडियम में एंटर करने के बाद ये सातों कलर स्प्लिट क्यों हो जाते हैं, जबकि एयर में सब लोग अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के बावजूद भी स्पीड मेंटेन करते हैं, सेम चलते हैं. तो ग्लास और वाटर मीडियम में जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है ना. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. रेड हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ, ब्लू हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ. रेड हैविंग very less frequency where blue having high frequency. So when all these 7 colors enter into glass prism, means which medium? Glass medium. This is white light. So this white light consists of all 7 colors. Okay, so these 7 colors are nothing but the, so this is the photon of red color. अगर हम लाइट को मैटर कंसिडर करते हैं तो उसको सबसे छोटा पार्टिकल कौन हो गया, फोटोन. तो ये रेड कलर का फोटोन है. ये रेड कलर का फोटोन ऑसिलेट होते आगे बढ़ रहा है. अब ऑसिलेट होते जब आगे बढ़ रहा है अपनी एनर्जी के साथ, तो रेड कलर ऑसिलेट कैसे होगा, लॉन्ग वेवलेंथ रहेगी और फ्रीक्वेंसी काफी कम होगी. मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कम बार ऑसिलेट करेगा. ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कम बार ऑसिलेट होगा. कौन, रेड कलर. सो ऐसा रेड कलर जब ग्लास मीडियम या वाटर मीडियम में एंटर करेगा और किसे टकराएगा, दिस इज द पार्टिकल ऑफ ग्लास और वाटर वी कैन से. तो जैसे ये इसे जाके टकराएगा तो ये ग्लास या वाटर का पार्टिकल इस रेड कलर के फोटोन की एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा. अच्छे से समझ लो. सातों कलर टकराते हैं, उन सातों कलर में से जो रेड कलर का फोटोन होता है, सारे लोग ग्लास के ऊपर जाके टकराएंगे. तो ग्लास के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब एटम्स उस पर्टिकुलर आने वाले फोटोन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे. ठीक है, तो ये रेड कलर का फोटोन आता है और जैसे ग्लास के ऊपर टकराता है, ये ग्लास का पार्टिकल उसकी एनर्जी जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहा है, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे. एब्सॉर्ब करने के बाद जैसे ये रेड कलर का फोटोन ऑसिलेट हो रहा था, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करेंगे और वो भी ऑसिलेट होने लगेंगे. जैसे हमने साउंड में पढ़ा, एक पार्टिकल आके टकराता है, फिर दूसरा भी ऑसिलेशन में जाता है, फिर वो तीसरे को टकराता है, फिर वो चौथे को टकराता है. तो जैसे व्हाइट लाइट एंटर करती है, इसमें सातों कलर के फोटोन है, तो ये सातों कलर के फोटोन ग्लास के ऊपर टकराएंगे. फिर ये ग्लास के पार्टिकल क्या करेंगे, उन सातों कलर के फोटोन से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे. एब्सॉर्ब करने के बाद उनके फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए ऑसिलेट होने की कोशिश करेंगे. बट ग्लास और वाटर का नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि ये एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद जिसकी वेवलेंथ कैसी है, हाई है, और फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो है. सो लो फ्रीक्वेंसी को ये एयर, ग्लास या वाटर के पार्टिकल मैच नहीं कर पाते हैं. लो फ्रीक्वेंसी के साथ आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्लास और वाटर के पार्टिकल मैच नहीं कर पाते, और मैच ना करने के बाद वो जल्दी ही उस एनर्जी को क्या कर देते हैं,
री इमिट कर देते हैं। मतलब क्या होगा, ऐसा फोटोन आएगा, इसे टकराएगा, ये कौन है ग्लास का पार्टिकल, ये कौन है फोटोन, फोटोन आके इसे ऐसे टकराएगा, जैसे इसे आके टकराएगा इस फोटोन की एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, वो भी वैसे ऑसिलेट होने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है ग्लास और वाटर का, ये लो फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाता। मैच ना करने के कारण वो जल्दी ही, वैसे तो ऑसिलेट हो नहीं पाएगा लो फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो जल्दी ही एब्सॉर्ब की हुई एनर्जी फिर से रीइमिट कर देता है और आगे वाले को दे देता है। अब आगे का वाटर या ग्लास पार्टिकल क्या करेगा, फिर से वो भी वैसे ही ऑसिलेट होने की कोशिश करेगा और पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो, मैच नहीं कर पाएगा और जल्दी ही दे देगा। सो रेड कलर का फोटोन जैसे एंटर होता है, वो फटाफट अपनी एनर्जी क्या करता है, ग्लास पार्टिकल को देते जाता है। ग्लास पार्टिकल उसे एब्सॉर्ब करके ऑसिलेट होने की कोशिश करता है, बट फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण मैच नहीं कर पाता, तो रीइमिट कर देता है। एब्सॉर्ब रीइमिट, एब्सॉर्ब रीइमिट, एब्सॉर्ब रीइमिट। ये प्रोसेस काफी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच ना होने के कारण वो उस तरीके से ऑसिलेट नहीं कर पाते। इसलिए रेड कलर जो होता है ग्लास में एंटर करने के कारण उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। ये कौन सा मीडियम है, एयर, मतलब कौन सा मीडियम है, रेयर। ये ग्लास मतलब ये कैसा है, डेंसर। तो जैसे लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। कैसे होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल तो झुकना ही है, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकना ही है। लेकिन रेड की स्पीड ज्यादा चेंज नहीं होती, रेड की स्पीड ज्यादा चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी को ग्लास या वाटर के पार्टिकल मैच नहीं कर पाते। एब्सॉर्ब करते ही जल्दी जल्दी रीइमिट करते हैं, तो बड़े जल्दी वो इस ग्लास के बाहर आ जाता है, तो स्पीड ज्यादा चेंज नहीं होती, वो थोड़ा सा डेविएट होता है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होता है। बट जब मैं बात करता हूं ग्रीन की, फिर ग्रीन कलर का भी फोटोन टकराएगा। ग्रीन का कैसा है, वेवलेंथ थोड़ी कम हो चुकी है तो मैं मॉडरेट लिखता हूं, और फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बढ़ गई तो उसे भी मॉडरेट लिखता हूं। अब एज कंपेयर टू रेड, ग्रीन के जो फोटोन से जब ग्लास और वाटर को टकराएगा तो इनकी भी एनर्जी होल्ड करेंगे ग्लास के पार्टिकल्स, और उनके जैसे ऑसिलेट होने की कोशिश करेंगे। एज कंपेयर टू रेड वो थोड़े ऑसिलेट होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई, उसे वो मैच कर सकते हैं, उसे वो मैच कर सकते हैं। मैच करने के कारण क्या होगा, वो थोड़ी देर ऑसिलेट करते रहेंगे उनकी एनर्जी लेके। तो जिस तरीके से रेड कलर बड़े जल्दी ही बाहर आ गया, वैसा ग्रीन नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत मैच कर रहे हैं और ग्लास के पार्टिकल, और वैसे ऑसिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑसिलेट करेंगे तो थोड़ी देर बाद रीइमिट करेंगे, तो आगे वाले को एनर्जी थोड़ी देर बाद मिलेगी। तो ऐसे करते करते रेड तो बड़े जल्दी चला गया, पर ग्रीन इसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम लगना मतलब क्या होना, स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम हो गई तो ये थोड़ा ज्यादा एंगल के साथ डेविएट होगा, तो ऊपर रेड मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, ग्रीन। फिर बारी आती है ब्लू की। तो ब्लू के फोटॉन्स किस तरीके से है, इनकी जो वेवलेंथ है ये काफी लो है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये काफी हाई है, और इस हाई फ्रीक्वेंसी को ग्लास और वाटर के पार्टिकल्स काफी अच्छे तरीके से मैच करते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये आया ब्लू का फोटोन, टकराया, और ब्लू की एनर्जी लेके ग्लास का पार्टिकल ऑसिलेट हो। अब उसकी मैच होगी फ्रीक्वेंसी, तो वो उसकी एनर्जी होल्ड करके रख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल को, उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल को, तो सब लोग वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं और उनकी एनर्जी होल्ड करके वैसे ऑसिलेट हो रहे हैं। होल्ड करके रख रहे हैं तो रीइमिशन को लेट होगा, आगे पहुंचने को लेट होगा, मतलब स्पीड काफी कम हो जाएगी। और स्पीड अगर कम हो गई तो आपको पता है जितनी कम होगी स्पीड उतना ज्यादा बेंड होना पड़ता है, तो ये काफी बड़े एंगल से बेंड होगा। इसमें बीच में बाकी कलर आ गए, तो ये ब्लू शेड, ये ग्रीन शेड, रेड शेड। तो रेड जो है ग्रीन कलर में, जो रेड जो है वो ग्लास मीडियम में सबसे ऊपर दिखेगा और ब्लू सबसे नीचे दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज रेड हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ एंड हैविंग लेस फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई उसकी स्पीड चेंज होती है, कम तो होती है ऑब्वियसली। डेंसर मीडियम में जाने के बाद सारे लाइट की स्पीड चेंज होती है, बट रेड की उतनी चेंज नहीं होती जितनी ब्लू की होती है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है,
जो कलर लॉन्ग वेवलेंथ वाला रहता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। जो कलर लॉन्ग वेवलेंथ वाला होता है उसकी स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं होती, ज़्यादा कम नहीं होती। ज़्यादा कम नहीं होगी तो ज़्यादा बेंड नहीं होगी, और ज़्यादा बेंड नहीं होगी तो ऊपर दिखाई देगी। लेकिन जो ब्लू कलर है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी है और फ्रीक्वेंसी काफ़ी बड़ी है, इसे बहुत अपनी स्पीड कम हो जाने के कारण बड़े एंगल से डेविएट होना पड़ता है, और वो कहाँ पे मिलता है आपको? बॉटम में मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल 7 कलर्स, all 7 colors having a different wavelength and different frequency. तो different wavelength और different frequency होने के कारण when they enters into water or glass medium, they all has to deviate through different angle. रेड वाले कम एंगल के साथ होंगे, ग्रीन वाले मॉडरेट, और ब्लू वाले सबसे ज्यादा एंगल के साथ। तो सबसे ज्यादा एंगल के साथ, फिर थोड़ा कम, और सबसे कम। तो सारे 7 कलर क्या हो गए? सेपरेट हो गए ना, बिकॉज they deviate through different angles because of their wavelength and frequency. और इस कारण when this white light enters into glass prism, they deviate through different angle and they splits from each other. अब वो white light टूट गया क्योंकि सारे लोग सेपरेट हो, और जैसे वो सेपरेट हो गए तो अब ये कौन से मीडियम में निकलेंगे? एयर में फिर से वापस निकलेंगे। तो आपको ये बैंड मिलेगा ऑफ 7 कलर, जिसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। Are you getting me? So this is the phenomenon. इतना डिटेल में हमें टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस हमें ये ध्यान में रखना है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्पीड ग्लास में एंटर करने के बाद ज़्यादा कम नहीं होती, इसलिए वो कम एंगल से डेविएट होता है। बट जिसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है उसकी स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, उसे बड़े एंगल से डेविएट करना पड़ता है। अलग अलग वेवलेंथ के कारण अलग अलग एंगल से डेविएट होना, दैट्स व्हाई दे separated splits from each other, and your white light splits into 7 different colors called as dispersion of white light through glass prism. Are you getting me? Yes or no? That's why you will get red color on the top and blue color at the bottom. Why red on the top? Definitely वेवलेंथ ज़्यादा है तो कम एंगल से डेविएट होगा। Why blue on the bottom? क्योंकि वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा एंगल के साथ डेविएट होगा। Are you getting me? So this is all about dispersion of light through glass prism. Okay. After this, अब रीजन तो हमें पता चल गया, अब क्या होगा? Now we are talking about the experiment done by Newton. What? Recombination of white light. When we are talking about recombination of white light, क्या किया था न्यूटन ने? पहला प्रिज्म सीधा रखा और दूसरा प्रिज्म जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल था टू द फर्स्ट प्रिज्म, उसे वर्टिकली इन्वर्टेड प्लेस किया। इस तरीके से बोथ आर आइडेंटिकल प्रिज्म्स, बिल्कुल सेम है। एक को सीधा रखा और एक को उल्टा रखा, क्योंकि जब दोनों को सीधा रखा तो उन्हें 7 के 49 कलर्स तो मिले नहीं, तो एक बार उन्होंने उल्टा रख के रखा। देन व्हाट विल हैपन? दिस व्हाइट लाइट एंटर्स एंड splits into 7 different colors. अब फिर से वही, now white light enters तो फिर से वही, सबसे ऊपर कौन? रेड, और बॉटम में ब्लू। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल निकालूं तो नॉर्मल की तरफ झुकना पड़ता है सभी को, तो रेड थोड़ा कम झुका और ब्लू सबसे ज़्यादा झुका। क्यों ब्लू सबसे ज़्यादा झुका? क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा चेंज हुई। फिर यहाँ से लेते हुए ये आपको विबग्योर मिल गया। अब ये सातों कलर फिर से इस मीडियम में गया। अब सब लोग अच्छे से ध्यान दें,
यहाँ पे एक पॉइंट पे टकराए थे लेकिन 7 कलर्स में सेपरेट हो गए। अब ये सातों कलर सेपरेटेड बाहर आए और इस बार 7 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टकराए। जब ये 7 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टकराए तो 7 के लिए 7 नॉर्मल निकालने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे। ये पहले का नॉर्मल, ये दूसरे का नॉर्मल, ये तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठवे का, सातवें का। अब नीचे कौन सा कलर है? ब्लू। और ऊपर कौन सा कलर है? रेड। और बीच में ग्रीन शेड। सो ब्लू कलर जब फिर से एंटर करेगा तो डेविएट सबसे ज्यादा कौन होगा? ब्लू ही होगा। इधर कौन सबसे ज्यादा डेविएट हुआ था? ब्लू। इधर भी सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा? डेफिनेटली ब्लू, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा चेंज होती है। तो ये ब्लू सबसे ज्यादा डेविएट हो गया। ये देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ब्लू के बाद कौन? इंडिगो, सॉरी वॉयलेट से स्टार्ट करते हैं। वी सबसे ज्यादा बेंड होगा, फिर वॉयलेट के बाद इंडिगो वी आई, फिर ब्लू थोड़ा कम, फिर ग्रीन उससे भी कम, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या पता चला आपको? जो पहले प्रिज्म में सबसे ज्यादा डेविएट हुआ था नीचे, अब वही वॉयलेट दूसरे प्रिज्म में एंटर करने के बाद भी उतना ही डेविएट होगा। पहला प्रिज्म सीधा रखा था तो बॉटम साइड में डेविएट हुए, दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा है तो अपर साइड में डेविएट होंगे। तो जितना वो वॉयलेट नीचे झुका था उतना ही वॉयलेट ऊपर गया। देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। तो जितना जितना इधर पहली बार वो डेविएट हुए थे दूसरी बार भी उतना ही डेविएट हुए। तो एक पॉइंट में आए थे तो 7 में सेपरेट हुए थे, तो 7 पॉइंट्स में टकराने के बाद फिर से डेविएट हुए तो एक पॉइंट में आके मिल गए, फिर से वो क्या हो गए? रिकम्बाइन। अब रिकम्बाइन होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलेंगे कौन सा मीडियम आएगा? एयर। इस मीडियम से फिर से वो क्या बन के बाहर निकलेंगे? व्हाइट लाइट बन के बाहर निकलेंगे। और आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर एक साथ देखो तो ये तो ऐसा दिख रहा है ना, इट लुक्स लाइक अ ग्लास स्लैब। ये तो ग्लास स्लैब में सीखा है हमने, एक लाइट एंटर करती है, फिर बीच में क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है और फिर से इमर्ज होती है। और हमारा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कैसे होता है? पैरेलल। व्हाइट लाइट जाता है तो व्हाइट लाइट वापस आता है, बीच में वो स्प्लिट अप भी होता है और रिकम्बाइन भी होता है। तो क्या सर ऐसा सब ग्लास स्लैब में भी दिखेगा? डेफिनेटली दिखता है। वो फ्रिंज काफी फेड होती है, इसलिए हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स आल्सो। So this is the example or this is the experiment done by Newton called as recombination of white light, जहाँ पे सातों कलर पहले प्रिज्म ने स्प्लिट किए और दूसरे प्रिज्म में उल्टा रखने के कारण फिर से रिकम्बाइन करके आपको व्हाइट लाइट दी। After this particular experiment, Newton come to know that there are only 7 natural colors, not more than that. एक व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होता है और फिर से वो 7 कलर अगर रिकम्बाइन करो so you will get the white light. That's why it is called a recombination of white. Are you getting me? Yes. So this is all about dispersion of light through glass prism, and this dispersion of white light through glass prism having one application, that is rainbow formation, that we will start in the next video. Thank you so much.